روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ ٹی آر ایس پارٹی 9ویں مرتبہ صدر کی حیثیت سے منتخب۔ ٹی آر ایس پارٹی کے پاس 240 کروڑ روپے کے فکسڈ ڈپازٹ۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا خطاب۔ متحدہ ضلعوں میں پرسکون انٹر فرسٹ ایئر امتحانات کا انعقاد۔ کووڈ قواعد پر عمل آوری کرتے ہوئے 93% طلباء نے کی شرکت۔ مفت قانونی خدمات سے استفادہ حاصل کرے۔ قانون کے دفعات کے متعلق مقامی عوام کو جانکاری حاصل کرنے کا سینئر سول جج وکرم نے کی تاکید۔ اوپن ہاؤس پروگرام میں عوام کا بہتر رد عمل۔ تقریباً 500 افراد نے اس پروگرام سے استفادہ کرنے کا سی پی کارتکیہ نے کیا انکشاف۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینیواس بانسواڑہ میونسپلٹی کے احاطے میں واقع وارڈ نمبر 2 اور 16 کا دورہ کرتے ہوئے معظم مقیم عوام سے متعلقہ مسائل کو سماعت کر کے فوری طور پر حل کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی کی صدارت میں پرجاوانی کا کامیاب انعقاد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ ٹی آر ایس پارٹی 9ویں مرتبہ صدر کی حیثیت سے منتخب۔ ٹی آر ایس پارٹی کے پاس 240 کروڑ روپے کے فکسڈ ڈپازٹ۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا خطاب۔ چیف منسٹر صدر ٹی آر ایس چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ٹی آر ایس مالی طور پر بھی کافی مضبوط ہے۔ ٹی آر ایس کو 240 کروڑ روپے کے فکسڈ ڈپازٹ کے عطیات وصول ہوئے ہیں۔ پارٹی کی سرگرمیاں قانونی طور پر حاصل کردہ عطیات کے ذریعے جاری رہتی ہے۔ ہر ماہ فکسڈ ڈپازٹ کے ذریعے پارٹی کو 2 کروڑ روپے آتے ہیں۔ 31 اضلاع میں پارٹی دفاتر تعمیر کیے گئے۔ حیدرآباد اور ورنگل میں بھی پارٹی دفاتر تعمیر کیے جائیں گے۔ سی ایم کے سی آر نے کہا کہ ہم ہر حلقے میں پارٹی دفاتر قائم کریں گے۔ حیدرآباد کے ہائی ٹیکس میں ٹی آر ایس پارٹی کے پلینری اجلاس میں پارٹی صدر کی حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد چندر شیکھر راؤ نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے خطاب کیا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے 7 سالہ دور اختیار کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی ترقی ہر شعبے میں ہوئی اور تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے گئے۔ دوسری ریاستوں کے مماثل ریاست تلنگانہ میں مثالی ترقیاتی کاموں کو انجام دیا گیا۔ مشن بھگیرتا کے ذریعے عوام کو نلوں کے ذریعے پینے کے پانی کی سربراہی عمل میں لائی گئی۔ 24 گھنٹے برقی کی سربراہی کو یقینی بنایا گیا۔ ٹی آر ایس سربراہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے بارے میں پھیلائے گئے شکوک و شبہات اور غلط معلومات کے درمیان گلابی پرچم لہرایا گیا اور 27 اکتوبر 2001 کو تلنگانہ کے جہد کار کونڈا لکشمن باپو جی کی موجودگی میں پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلسل 9ویں مرتبہ پارٹی کے صدر منتخب ہونے کے بعد ہائی ٹیکس میں منعقدہ پلینری سیشن کے کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے چندر شیکھر راؤ نے انہیں متفقہ طور پر صدر منتخب کرنے پر تمام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ٹی آر ایس کے قیام کے موقع پر کئی شبہات کا اظہار کیا گیا تھا۔ پارٹی کا قیام نامناسب حالات میں عمل میں لایا گیا اور ٹی آر ایس کے جھنڈے کو جاری کیا گیا۔ تلنگانہ تحریک کا آغاز چند دوستوں سے ہوا۔ تحریک آزادی میں کئی ناکامیوں کے باوجود جدوجہد نہیں رکی۔ اس لڑائی میں ایمانداری تھی جس کی وجہ سے کامیابی ملی۔ انہوں نے اسی جذبے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور دیا اور کہا کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم عدم تشدد کے طریقے سے لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے کئی طرح کے غلط پروپیگنڈے پھیلائے گئے، تاہم ان 7 سالوں میں تمام جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں دلت بندھو اسکیم کے آغاز کے
बाद एपी में भी टीआरएस के क़याम के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। इस प्रोग्राम में गरम श्री हरि, वजीर दाखिला महमूद अली, रियासती वज़रा केटीआर, हरीश राव, जगदीश्वर रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, निजामाबाद मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, अकबर हुसैन, टीआरएस सीनियर कायदीन अख्तर खान, नवीद इकबाल, स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, अब्दुल समी, अब्दुल मतीन, अकबर नवाज सारंगपुर, अकबर खान, मुजाहिद अली, सनाउल्लाह खान और दीगर कायदीन की कसीर तादाद में तमाम अजला के टीआरएस कायदीन जिनको पासेस जारी किए गए, इन्होंने बजरिए बस से हाईटेक सिटी में मुनाकिदा प्लेनरी इजलास में शिरकत की। प्रोग्राम में पार्टी कायदीन के लिए खाने और पीने के पानी का बेहतरीन नज़्म रखा गया। ఈనాటి ప్లీనరీ సమావేశానికి తరలి వచ్చినటువంటి గౌరవ ప్లీనరీ సమావేశ సభ్యులు మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 20 సంవత్సరాల ప్రస్థానం తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టవలసిందిగా ఏకగ్రీవంగా మీరందరూ నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణలో 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే అన్ని గ్రామాలలో అద్భుతమైన పల్లె ప్రకృతి వనాలు, వైకుంఠ ధామాలు, ప్రతి ఇంటికి ప్రతిరోజు నిరంతరంగా వచ్చే కృష్ణా గోదావరి జలాలు, మిషన్ భగీరథ అద్భుతంగా పొంగి పొర్లి కనువిందు చేస్తున్నటువంటి చెక్ డ్యాములు, నెలల తరబడి ఆగకుండా మత్తలు పోస్తున్నటువంటి మన చెరువులు, మన కాకతీయ రాజులు నిర్మించి మనకిచ్చిన చెరువులు, ఈ దృశ్యం వల్ల చూస్తామా అని భయపడేవాళ్ళం. సమైక్య రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్క రూపాయి కూడా మైనర్ ఇరిగేషన్కు రానటువంటి స్థితిని శాసనసభ్యునిగా నేనే స్వయంగా గమనించిన పరిస్థితి. మిషన్ కాకతీయ పుణ్యమని ఇంత భారీ వర్షాలు గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కురిసినా ఎక్కడ ఏ జిల్లాలో కూడా ఒక్క చెరువు కూడా తెగిపోలేదు. అది మిషన్ కాకతీయ ఫలితం. మన శాసనసభ్యులు అవలంబించిన విధానం, ప్రభుత్వం కార్యక్రమం ఇస్తే మన శాసనసభ్యులంతా రాత్రింబవళ్ళు తమ కార్యక్షేత్రంలో తమ నియోజకవర్గాలలో నిబద్ధతతో సాగించిన కృషి. बैंसा मुस्तखर में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू का माहौल, दलित तंजीमों की जानिब से खवातीन ने किए एहतजाजी मुजाहरे। आज दूसरे दिन भी महकमे पुलिस की जानिब से अमन की बरकरारी के लिए कर्फ्यू नाफिज रहा। इस दौरान कई दलित तंजीमों की जानिब से एहतजाज दर्ज करते हुए खवातीन ने रैली व एहतजाज मुनज़्ज़म किया। महकमे पुलिस की जानिब से एहतियाती तौर पर कर्फ्यू पर अमलावरी करते हुए भैंसे में अमन कायम करने के लिए हर तरह की मुमकिना कोशिश जारी है। अवाम से सोशल मीडिया पर गैर जरूरी तस्वीर पोस्ट न करने की महकमे पुलिस ने अपील की। जिले निजामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड पर शांति नीलाम पर मुनाकिदा खूनकातिया का डिप्टी पुलिस कमिश्नर वी अरविंद बाबू ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड प्रशांति नीलाम पर मुनाकिदा खूनकातिया कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर वी अरविंद बाबू ने शिरकत करते हुए कहा कि समाज में पुलिस मुलाजमीन का किरदार निहायत ही अहमियत का हामिल है और कहा कि पुलिस मुलाजमीन खिदमत अंजाम देने के दौरान अपने कीमती जानों की परवाह न करके कुर्बानी देने वाले शोहदा पुलिस मुलाजमीन की याद में अक्टूबर 31 तारीख तक यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के साथ ऑनलाइन मजमून नवेसी मुकाबलाजात और ऑनलाइन ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము పోలీస్ తరఫున, డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కూడా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లాగే ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వచ్చి సక్సెస్ఫుల్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది, పార్టిసిపేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ కూడా వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇబ్బంది కలిగింది అండ్ మీ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి మాకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు డొనేషన్ క్యాంప్స్ వరకు వచ్చాము మనము. మీరు బ్లడ్ ఇవ్వడం అనేది మాకు చాలా హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఒక్క బ్లడ్ ఆల్మోస్ట్ 3 పీపుల్ని సేవ్ చేస్తుంది 1 యూనిట్. సో మీరు ఒక్క మనిషి ఎవరైతే డొనేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు 3 పీపుల్ని సేవ్ చేస్తారు. పోలీస్ అండ్ పబ్లిక్ అందరికీ కూడా వెల్కమ్. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. మనము ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి మనం చేసే ప్రయత్నంలో ఒక సామాన్యులుగా
మనం చేసే ప్రయత్నంలో ఒకటి రక్తదానం. ఈ రక్తదానం వల్ల ఒక ప్రాణం లేదా 2 ప్రాణాలు నిలబెట్టడానికి మనకి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా సార్లు రక్తదానం చేస్తుంటారు. फैजान एजुकेशन की जानिब से नेट इम्तिहानात के मद्देनजर तुलबा की मौसर नुमाइंदगी करते हुए माहिरीन का तुलबा के साथ इजलास। शहर निजामाबाद में फैजान एजुकेशन की जानिब से तालीमी मैदान में तुलबा को बढ़ावा देने के लिए वो मौजू से बाखबर रखने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी के तहत फैजान एजुकेशन की जानिब से नेट इम्तिहानात में तुलबा की मौसर रहनुमाई के लिए मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हैदराबाद के माहिर डॉक्टर अब्दुल रब आरिफ की क़यादत में शहर निजामाबाद में नेट शऊर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई तुलबा ने अपने कशो-शुबात को अब्दुल रब साहब के गाइडेंस में हल किया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर अब्दुल रफीक, वाइस प्रेसिडेंट जीजी कॉलेज, मोहम्मद मकसूद अहमद, एडवोकेट हाफिज समीउल्लाह, अफजल भाई तेजान, सिराज मुजाहिद के अलावा दीगर मौजूद थे। या यहाँ पर जो है ना एक ऐसा छोटा सा टिक्का आ गया तो कंप्यूटर जो है ना ये आपके OMR शीट को, ये क्वेश्चन को, ये जो आप आंसर दिए थे OMR को, वो एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे जो आप यानी रिप्लाई दिए यानी आंसर दिए हैं, उन आंसर्स को जो है ना बाजू में रखा गया है, रिजर्व में जिसको कहेंगे आप। तो उसके लिए आपको कंटेस्ट करना है कि साहब ये जो टिक्का पड़ा है या ये पड़ा मेरे पेन का नहीं है। OMR शीट जब प्रिंट हो रहा था उस वक्त प्रिंटिंग मिस्टेक से आ गया होगा, मैंने नहीं किया। टीआरएस के प्लेनरी इजलास में निजामाबाद कॉर्पोरेटर्स व कायदीन ने की शिरकत। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से रियासती सतह पर मुनक़िदा प्लेनरी इजलास में शहर के नुमाइंदे इजलास में शिरकत के लिए रवाना हुए, जिनमें सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल कुद्दूस, हरकियाती समाजी खिदमत गुजार कायद सनाउल्लाह, रफीक कुरैशी के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। इन्होंने सुबह के अव्वलीन सातों में MLA कैंप ऑफिस से बाजरिए बस प्लेनरी इजलास के लिए रवाना हुए, जहाँ पर सदारती इजलास और दीगर कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाएगी। इस इजलास में टीआरएस कॉर्पोरेटर्स नूडा चेयरमैन वो डायरेक्टर अख्तर खान, बबलू खान, अकबर हुसैन व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा प्रजावानी का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें दूर दराज मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने अपने अपने मसाइल से वाकिफियत करवाई, जिस पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम मसाइल को दिलचस्पी के साथ समाअत करके अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की और इस मौके पर 55 शिकायत कुनिंदगान की जानिब से दरख्वास्तें हासिल होने का AO रविंदर ने इजहार करते हुए रेवेन्यू से मुताल्लिक़ 35 जिले के महकमे सेहत से 5, म्यूनिसिपल से 3, RNB पंचायत रोड से मुताल्लिक़ा 3, महकमे पुलिस से 2, महकमे मवेशी से 1, ग्राम पंचायत से मुताल्लिक़ा 2, BL कॉर्पोरेशन के तहत 2, म्यूनिसिपल से 2 शिकायतें आने का इजहार किया। टीआरएस प्लेनरी में बबलू खान कॉर्पोरेटर और मोहम्मद उमर फारूक की शिरकत। टीआरएस पार्टी के प्लेनरी इजलास में बबलू खान, टीआरएस पार्टी कॉर्पोरेटर और मोहम्मद उमर फारूक ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से प्लेनरी इजलास के लिए मखसूस अफराद को शिरकत का मौका फराहम किया गया। निजामाबाद अर्बन से कई कायदीन ने शिरकत की। बबलू खान और मोहम्मद उमर फारूक ने शिरकत करते हुए टीआरएस हुकूमत की तमाम तबकात के लिए फलाही स्कीमात को हिंदुस्तान में मुनफरिद और मिसाली बताया। भीमगल मंडल गोनगुपुला देहात में पेश आया भयानक सड़क हादसे में एक खातून हलाक, दूसरा हुआ जख्मी। भीमगल मंडल गोनगुपुला देहात में वेलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले जनगा राजुला नरसैया 40 साल व इनकी बहन जनगा राजुला बालामनी 30 साल मोटरसाइकिल से पेदावालगुट देहात से वापसी के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से सड़क पर धान को सुखाने के लिए रखकर इसकी हिफाजत के लिए रखे गए पत्थर से बाइक के टकराने पर बालामनी रोड पर गिरने के फौरी बाद पीछे से आने वाली ट्रैक्टर ने बालामनी के सर को रौंद डाला, जिससे वो बरसरे मौके हलाक हो गई और इस हादसे में जख्मी होने वाले नरसैया को तिबी इमदाद के लिए सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। जकरानपल्ली एसआई मोहम्मद आसिफ ने मंडल में वाक़ गवर्नमेंट मॉडल स्कूल व कॉलेज का मुशाहिदा करके तुलबा व तालिबात को शी टीम साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखे से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी अमल में लाई।
जकरानपल्ली एसआई मोहम्मद आसिफ ने मंडल में वाक़ गवर्नमेंट मॉडल स्कूल व कॉलेज का मुशाहिदा करते हुए तलबा व तालिबात को टीम साइबर क्राइम और ऑनलाइन पर मबनी धोखे से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना में ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को काफ़ी अहमियत दी जाती है, इसीलिए इनके मसाइल को फौरी हल करने और इन्हें हिफाजत फराहम करने के लिए शी टीम भरोसा सेंटर विमेन सेफ्टी विंग का क़याम अमल में लाया गया है और इसी तरह से साइबर क्राइम व ऑनलाइन पर मबनी धोखे से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी अमल में लाने का इज़हार किया और कहा कि आज के नौजवानों को सही रहनुमाई न होने के बायस गैर कानूनी कामों में मुलविस होने के अलावा सिगरेट नोशी की लत में मुब्तला होकर अपने शानदार मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई गैर कानूनी कामों में मुलविस होने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की क़यादत में पार्टी मंडल सदर के ज़ेरे निगरानी में टीआरएस के कायदीन हैदराबाद की हाईटेक सिटी में मुनक़िद होने वाले प्लेनरी सेशन इजलास में शिरकत करने के लिए हुए रवाना। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी की ज़ेरे निगरानी में टीआरएस के कायदीन हैदराबाद की हाई टेक सिटी में मुनक़िद होने वाले प्लेनरी सेशन इजलास में शिरकत करने के लिए रवाना हो गए, जिसमें सदर टीआरएस के ओहदे के लिए केसीआर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इसी तरह से टीआरएस पार्टी के क़याम की 2 दहाइयों की तकमील के मौके पर इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बीपी लावण्या लिंगागौट हल्के सामान्य कमेटी मेंबरान गंगाधर मंडल के जनरल सेक्रेटरी पपुला विद्यासागर रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर राजेश्वर रायतु बंधु जिले मेंबरान आकुला नरेंद्र मौजे के सदर सागर यादव टीआरएस पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल जनेपल्ली देहात में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत जिले के सीनियर सिविल कोर्ट जज विक्रम व मुकामी सरपंच संजीव राव ने मुकामी अवाम को कानून के मुतालिक दिफात के मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाई। नवीपेट मंडल जनेपल्ली देहात में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत जिले के सीनियर सिविल कोर्ट जज विक्रम ने वो मुकामी सरपंच संजीव राव, एमपीटीसी रानी लक्ष्मण राव, नायब सरपंच राजीव के हमरा मौजे में मुक़ीम अवाम को कानून के दिफा से मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि मौजे में सुकूनत पजीर 70% अवाम के साथ शहर में मुक़ीम 30% अवाम को कानून के दिफात के मुतालिक शऊर बेदारी न होने के बायस जिले के सतह पर वकला के हमरा अवाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसआई प्रोहिबिशन प्रेम कुमार, एमपीडीओ साजिद अली, पंचायत सेक्रेटरी कविता, वार्ड मेंबरान व दीगर मौजे के अवाम ने शिरकत की। 75 సంవత్సరాలు మనకు స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఉంది। స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 75 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ జనాలకి చట్టాలపైన అవగాహన అనేది లేకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క సుప్రీం కోర్టు జడ్జి గారు మన చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీ ఎన్వి రమణ గారు, అదేవిధంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జి శ్రీ యుయు లలిత్ గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడాను జడ్జెస్ అందరూ కూడా గ్రామాలకి వెళ్ళి एड़पल्ली मंडल जानकमपेट सोसाइटी के जेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का सोसाइटी सदर एम नरेंद्र की हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट पीएसीएस के जेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का सोसाइटी नरेंद्र के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मानसून सीजन में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को रास्त तौर पर धान खरीदी सेंटर पर लाकर हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत हासिल करे। इसी तरह से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ए ग्रेड की धान को 1960, बी ग्रेड की धान को 1940 रुपए अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच साइलू यादव, नायब सरपंच विजय, सोसाइटी नायब सदर दासरी उड्डेना, डायरेक्टर्स सायन्ना, बंडारू लक्ष्मण, साइलू, बी लक्ष्मी, सोसाइटी सीईओ गंगा रेड्डी, सोसाइटी के साबिक़ा चेयरमैन पोतेना व दीगर ने शिरकत की। వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది। రైతులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం। ప్రభుత్వం సూచించినటువంటి సూచనలు సలహాలను పాటించాలని ఈ సందర్భంగా రైతాంగాన్ని కోరుతున్నాం। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ధరని फ्यूल कीमतों में इजाफे से अशियाए खुर्दनोश भी महंगी, सामान की मुंतकिली के अखराजात में इजाफा, अवाम पर आयत बोझ में मुसलसल इजाफा जारी। ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात अब अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मुरतब होने लगे हैं। तरकारियों, मेवाजात के अलावा किराना अशिया की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है, जो आम आदमी पर बोझ में इजाफे का सबब है। ठोस ताजरीन
का कहना है कि तेल बिलखुसूस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो महंगाई का सबब बन रही है और कीमतों पर कंट्रोल के लिए कोई मैकेनिज्म कारगर नहीं हो रहा है। डीजल और पेट्रोल कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट कीमतें भी तब्दील होने लगी है और इन अशिया की हमलो नकल पर खर्च में इजाफा मजमू एतबार से कीमत में इजाफे का सबब बन रहा है। अशिया जरूरिया की ताजीन बिलखुसूस किराना के अलावा तरकारी फरोशों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे को वो कीमत खरीद में शुमार करके मुनाफा रखकर कीमतों का तयन करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की रोजाना नई कीमतों से इन्हें नाकाबिले बयान सूरत हाल का सामना है और ग्राहकों के सवालात का कोई जवाब देने के मौक़िफ में नहीं है। ठोस ताजरीन का कहना है कि बाज़ औक़ात ग्राहकों की जानिब से एक हफ्ता कबल कीमतों के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है और एक हफ्ता बाद वो खरीदारी करते हैं, लेकिन इस दौरान कीमतों में तब्दीली ताजिन को शर्मिंदा कर रही है। इसी तरह तरकारी फरोश जो कि दुकानों शहरों के अतराफ मौजूद से तरकारियां शहर लाकर फरोख्त करते हैं वो भी ईंधन की कीमतों में इजाफे से परेशान है और इनका कहना है कि अगर इनके साथ सस्ती तरकारियां या कम तरकारियां होती है तो इन्हें तरकारियों से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की कीमत अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात बिलवास्ता इनके कारोबार पर भी पड़ने लगे हैं और आम आदमी ये सब अदायगी करने पर मजबूर है। जिले के फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के मद्देनजर ऑनलाइन ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने सहाफती बयान में बताया कि यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के पेश नजर फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन ओपन हाउस प्रोग्राम को सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 500 अफराद ने शिरकत करने का इजहार करते हुए कहा इस ऑनलाइन ओपन हाउस प्रोग्राम में अवाम को पुलिस मुलाजमिन की कारकर्दगी के तरीक़ेकार जैसे पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग, यूनिफॉर्म सर्विस, अवाम को किस तरह फायदा होगा और CCTV कैमरे के तरीक़ेकार व इस्तेमाल के मुतालिक CCTNS TS कॉप पोर्टल का तरीक़ेकार व शीटिंग व दीगर के मुतालिक जानकारी दी गई। ఈ రోజు నేరాల పరిశోధనలో కానీ నేరస్తులను పట్టుకోవడంలో కానీ సీసీ కెమెరాస్ అనేవి ఎంత ఉపయోగపడుతున్నాయో ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. మేము ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే పబ్లిక్ పోయి మోటివేట్ చేస్తున్నాం, కొంచెం కెమెరాస్ పెట్టుకోండి, మీ ఇంటికి కెమెరాస్ పెట్టుకోండి. ఎవరన్నా కొత్త హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మేము పోయి మోటివేట్ చేస్తున్నాం, మీ ఇల్లు ఇంత కష్టపడి ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు, కొన్ని కెమెరాస్ పెట్టుకోండి. ఈ కెమెరాస్ వల్ల మీకు ఉపయోగపడుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మీ వల్ల గలీలో ఉండే మిగతా ప్రజలకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. आरआर पान मसाला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पुरजोश इख्तिताम, फाइनल मैच में आखिरी बॉल तक सनसनी, ऑर्गेनाइजर हामिद बिन हकानी की जबरदस्त सताइश। फेमस पान मसाला आरआर ग्रुप के ज़ेर-ए-एहतिमाम नोबल ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल बरोज इतवार ABCC और यॉर्कशायर के दरमियान खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए यॉर्कशायर ने की, दूसरे इनिंग में बैटिंग करते हुए ABCC ने इनिंग की शुरुआत से ही मुकाबिल टीम पर हावी रही, लेकिन सीनियर क्रिकेटर तब्बू अली की कप्तानी में यॉर्कशायर टीम के बॉलर्स ने इस मैच को मजेदार बना दिया। जहां ये मान लिया गया था कि ABCC टीम इस मैच को बआसानी जीत लेगी, वहीं यॉर्कशायर के बॉलर्स ने विकेट्स लेते हुए इस मैच को आखिरी बॉल तक पहुंचा दिया। एक बॉल ही इस मैच की जीत या हार का सबब था, जिस पर बॉलर और बैट्समैन ने अपने अपने टीम को जिताने के लिए पूरी कोशिश की। यॉर्कशायर की जानिब से आखिरी बॉल पर कैच छोड़ने से ABCC ने शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि यॉर्कशायर टीम ने जबरदस्त मुकाबला करते हुए रनर अप की पोजीशन हासिल की। नोबल ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम मुकाबला शैलजा ग्राउंड पर मुनक़िद हुए, जिन्हें देखने के लिए स्पोर्ट्स क्रिकेट शायकीन का ग्राउंड पर रोजाना हुजूम देखा जा रहा था। टूर्नामेंट का इफ्तिताह मियां निजामाबाद नीतू किरण शेखर ने अंजाम दिया था। फाइनल मैच के बाद कल ग्राउंड में विनर टीम को 51,000 रुपए और रनर अप टीम यॉर्कशायर को 25,500 रुपए हासिल हुए। इख्तितामी तकरीब में मियां निजामाबाद श्रीमती नीतू किरण शेखर, मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर, शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस, एजाज हुसैन इंचार्ज कॉर्पोरेटर, शहबाज अहमद कॉर्पोरेशन मेंबर, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस TRS कॉर्पोरेटर, मुजाहिद अली बब्बू ML, जलील खायद TRS, नवीद इकबाल, अजवदुल्ला खान बॉडी बिल्डर के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए स्पोर्ट्स की फरोख के लिए नोबल ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के
मुलाकात पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। हामिद बिन हक्कानी प्रोप्राइटर नोबल फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 8 रोजा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों और क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी सदर तब्बू अली, सेक्रेटरी करीम लाला, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हामिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल अजीम और खाजिन हक्कानी खान का शुक्रिया अदा करते हुए इफ्तिताही व इख्तितामी तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम सियासी कायदीन व शायखीन से इजहार तशक्कुर किया। 80s और 90s में जब खेलते थे 11 स्टार और सुपर स्टार का मैच जैसा नजर आया, बहुत अच्छा है। बच्चों में बहुत एनर्जेटिक है। बहुत सारे बच्चे खैर उम्र के हिसाब से भागना दौड़ने में थोड़ा पीछे है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखे उसमें आज भी टैलेंट है और आगे भी शायद होगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर जो हमारे हामिद बिन हक्कानी साहब ने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो एक ऐसा काम किया पिछले 4-5 साल से सोच रहे थे, लेकिन आज वो चीज़ हमारे में हमारा जज्बा आया और हम और रवि नेपाल कभी एक स्टेज पे नहीं आए थे क्रिकेट के जमीन में लेकर, और एक चीज महसूस किए थे। मैं मेरे साहब से भी जिक्र किया हूँ कि यहाँ पर खुसूसन क्रिकेट के वास्ते कुछ स्पेशल ग्राउंड नहीं है। मैं आपको कोशिश अक्सर कामयाब होती बातें नहीं होते, ये कोशिश करूंगा कि आने वाले सालों में 100% ये निजामाबाद के वेस्टर्न साइड में इसके लिए एक क्रिकेट ग्राउंड अलाटमेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं मैडम से, हमारे मेयर मैडम जो है उनसे भी मेरी गुजारिश है और डिप्टी मेयर से भी, हमारे खुद साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज में हिस्सा लेंगे और हम मिलकर कोशिश करेंगे एक ग्राउंड के लिए, और वो ग्राउंड आप लोगों को देंगे और इंशाल्लाह ऐसा ही सिलसिला आगे रखिए। जो भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर आज से इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात का आगाज। भीमगढ़ मंडल में कोरोना वबा के बायस मुलतवी करदा फर्स्ट ईयर इम्तिहानात इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात का सुबह 9 था दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद होंगे, जो कि आने वाले इस माह की 3 तारीख तक जारी रहने का कॉलेज प्रिंसिपल अब्बा चिरंजीवी ने इजहार करते हुए कहा कि इंटर फर्स्ट ईयर इस इम्तिहानात के 3 सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान की जानिब से क़वायद पर मुकम्मल अमलावरी करते हुए हर एक तलबा को यकीनी तौर पर मास्क की शर्त रखकर इम्तिहान हॉल में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा म्यूनसिपैलिटी के अहाते में वाक़ वार्ड नंबर 2 और 16 का दौरा करके वार्ड में मुक़ीम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़फियत हासिल की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा म्यूनसिपैलिटी के अहाते में वाक़ वार्ड नंबर 2 व 16 का दौरा करते हुए वार्ड में मुक़ीम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़फियत हासिल करके फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। वो इसी तरह म्यूनसिपैलिटी के अहाते में मुनक़िदा कामों के मुताल्लिक़ जिम्मेदार ओहदेदारान से तमाम तरीन तफसीलात हासिल की। इस मौके पर दीगर अवाम डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश करने पर असम्बली स्पीकर ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम जारी है। तमाम सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक अवाम को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। ఈ లైన్ది ఎస్టిమేట్ చేసి వరంగా పంపిస్తాం. నేను సీఎండితో మాట్లాడతాను. ఎన్ని కంబాలు మార్చాలి? అది 2 కంబాలా 33/11 kV. సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకుంటేనేమో ఇసుక పైసలు కట్టాలి. గవర్నమెంట్ డబుల్ బెడ్రూమ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ కాబట్టి ఆర్డీఓ గారు పర్మిట్ ఇస్తాడు. ఖాళీ ట్రాక్టర్ కిరాయి పెట్టుకోవాలి. ఇసుక పైసలు ఉండయాడ. ఇసుక ఫ్రీగా ఇస్తాం. ఒక ఇంటికి 15 ట్రాక్టర్లు పడతాయి. సుమారుగా 15 ట్రాక్టర్లు ఖాళీ ఇప్పుడున్న మీ కౌన్సిలర్ లేకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు మీకు ఎంటదంటే 5 బిల్లు ఇస్తాం. బేస్మెంట్ కడితే 1,00,000 రూపాయలు వస్తుంది. స్లాబ్ వేసుకుంటే 1,00,000, గోడలు పెట్టుకుంటే 1,00,000, అస్త్రకారు చేసుకుంటే 1,00,000, ఆఖరి ఫైనల్ బిల్ 1,00,000. पेट्रोल गैस की बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर कामरेड्डी कांग्रेस कायदीन यूथ कांग्रेस की जानिब से सड़क पर पकवान करते हुए अनोखा एहतजाज। सदर योजना शिवसेना रेड्डी साबिक रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर आए दिन पेट्रोल और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कामरेड्डी में जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस कायदीन यूथ कांग्रेस के कायद गड़गुला सीनू की क़यादत में शहीदपुर रोड पर सड़क पर पकवान करते हुए ताम का इंतजाम किया गया और सड़क पर बैठकर ही खाना खाया। इन कायदीन ने बताया कि आए दिन पेट्रोल व गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम बिलखुसूस आम आदमी बेहद परेशान है, फौरी कमी करे वरना इस तरह कई एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाएंगे। इस मौके पर गंगाधर, रवि, मोहम्मद अतीक, इम्तियाजुल्ला, अलीम व दीगर यूथ कांग्रेस के कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। మన యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శివసేన రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు మా కామారెడ్డి ముద్దుబిడ్డ మన కామారెడ్డి నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు మన
షబ్బీర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు కామారెడ్డిలో గ్యాసు పెంపుకు నిరసనంగా వంట వార్పు కార్యక్రమం యువజన కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రజలు ఎంతోమంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి రావడం జరుగుతున్నది. ఎందుకంటే 500 రూపాయలున్న గ్యాసు ఈరోజు 1010 రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది. మోడీ ఇదేనా నీ రామరాజ్యం అంటున్నావు, ఇదేనా నీ రామరాజ్యం? ప్రజలు కరోనాతో విల్లాడిపోతున్నారు, అల్లాకొల్లం ప్రజలు. ఈ టైంలో నువ్వు ఈ గ్యాస్ ధర పెంచడం, పెట్రోల్ ధర పెంచడం వల్ల ప్రజలను ఇంకా లోపలికి తొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. నువ్వు పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకు వాళ్ళ వంతు వాడుతున్నావు. डिचपली मंडल सुदापल्ली देहात में एमपीपी भूमन्ना के हाथों धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। डिचपली मंडल सुदापल्ली देहात में कायम किए गए धान खरीदी सेंटर का एमपीपी भूमन्ना के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रूपा सतीश रेड्डी, एमपीटीसी संतोष, वार्ड मेंबरान, बीजेपी मंडल सदर वेंकटना रमना, भाजपा किसान मोर्चा के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर एमपीपी ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली रुकावट को दूर करने के अलावा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम किया जा रहा है। इसीलिए तमाम किसान अपनी काश्त की गई पैदावार को रास्त तौर पर धान खरीदी सेंटर पर लाकर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। మన సుద్దపల్లి గ్రామంలో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందుకు యావత్ ప్రజలందరికీ, రైతులందరికీ నా మనవి ఏంటంటే, ఇక్కడ మరి దళారీలు చేతుల్లో మోసపోకుండా మరియు రైతులందరూ కూడా గవర్నమెంటే ఒక రేట్ ప్రకటించింది కాబట్టి ప్రతి రైతు కూడా గవర్నమెంట్కే వడ్లు అమ్మాలని మనవి చేస్తున్నాను. అలాగే इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सिलसिले पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी 9वीं मरतबा सदर की हैसियत से मुंतखब। टीआरएस पार्टी के पास 240 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। मुत्तहदा जिलों में पुरसुकून इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात का इनेकाद। कोविड खवायद पर अमलावरी करते हुए 93% तलबा ने की शिरकत। मुफ्त कानूनी खिदमात से इस्तिफादा हासिल करें। कानून के दिफात के मुतालिक मुकामी अवाम को जानकारी हासिल करने का सीनियर सिविल जज विक्रम ने की ताकीद। ओपन हाउस प्रोग्राम में अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल। तकरीबन 500 अफराद ने इस प्रोग्राम से इस्तिफादा करने का सीपी कार्तिकिया ने किया इंकशाफ। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा म्यूनसिपैलिटी के अहाते में वाक़े वार्ड नंबर 2 और 16 का दौरा करते हुए मौज़े में मुक़ीम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को समाअत करके फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में प्रजावानी का कामयाब इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।